election season is upon Bihar as the 2025 assembly elections draw close. And an interesting battle is shaping up in the constituency of Maner, where the RJD have backed four-time MLA Bhai Virendra to win a fifth term in the Vidhan Sabha. The Maner Assembly constituency is one of the 243 Vidhan Sabha constituencies of Bihar. Located in the Patliputra district, it has an electoral history tracing all the way back to 1952. 85.1% of the population of Maner is rural, with the remaining 14.9% falling in the urban category. It has 10.8% SC population and a negligible ST population according to the last census. 96.1% of the population is Hindu and 3.5% of the population is of the Muslim faith, with the remaining made up by other religious beliefs. According to the Special Intensive Revision Exercise data, Maner has a total projected population of 5.7 lakhs, of which 3.4 lakh qualify to vote in this election. In the 2020 Assembly elections, Maner saw a voter turnout of 61%. Maner is renowned as one of the centers of Sufi culture in India, having shrines to Sufi saints dating back to the 13th century. The Mughal emperors considered it one of the key centers of Sufi wisdom and built several beautiful mausoleums for the saints that called Maner home. Over the 20th century, Maner became something of a bastion for the Indian National Congress. Since 2000, however, it is the stronghold of Bhai Virendra, who has won 4 of the 5 elections held in Bihar in the 21st century. Bhai Virendra Yadav is a veteran of Bihar's politics in the truest sense of the term. A 4-time MLA from Maner, he started his political career in 2000, winning the assembly polls under the banner of Nitish Kumar and George Fernandez's Samada party. In 2010, he joined Lalu Yadav's Rashtriya Janata Dal and has since established himself as one of the party's tallest leaders. This year, Bhai Virendra faces a rather unique challenge in Maner. 3 parties are making their debut on Maner's ballot list, namely Chirag Paswan's LJP, Prashant Kishore's Jan Suraj Party, and Tej Pratap Yadav's Jan Shakti Janata Dal. While none of the candidates are as well known as Bhai Virendra, the caste equation in Maner may make for a close battle. To map the pulse of the people as this hugely interesting battle goes down, Team NewsX headed to Maner. The people of Maner, like those across Bihar, are extremely vocal about the problems they face in their day-to-day lives. To learn more, we went directly to the citizens of Maner, who told us about the key issues this election will be contested on. मनेर में ही मौजूद हैं हम। उधर देखिए कि जो विधायक जी हैं वो अपना कैंपेन ट्रेल कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक वोट से भी बड़े बड़े नेता हार चुके हैं और सरकारें इधर से उधर हो जाती हैं। लिहाजा वोट की कीमत, नेताजी जी बोलिए। वोट की कीमत नेताजी समझते हैं ना? हाँ बिल्कुल समझते हैं। आप लोग के बीच भी भाई वीरेंद्र आए तो क्या कुछ है इनको लेकर, क्या जनता सोच रही है, सरकार को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल हमने के आरजेडी के सरकार बनाने वाले हैं और बनाएंगे ही। तो आरजेडी की सरकार क्यों चाहिए? बदलाव जरूरी है। 15 साल देख लिए हमने के, अब बदलाव जरूरी चाहिए। बदलाव किस तरह का चाहिए? हर तरह से चाहिए बदलाव। आप बताइए, बदलाव सिर्फ बदलाव के लिए चाहिए कि कुछ कोई गलत करता है तब बदलाव चाहिए कि जाति के नाम पे बदलाव? दोनों डिपेंड करता है। बदलाव भी चाहिए, बदलाव के तौर पे भी मतलब वोटिंग जरूरी है। और जैसे कि हम लोग तो देख रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग में एनडीए का सरकार जो चल रहा है, और अगर जब बदलाव होता है, मतलब देखते हैं कि बदलाव हो और कुछ बढ़िया मिले हम लोग को, जैसे कि तेजस्वी यादव का कुछ मुद्दा है, एजुकेशन, जॉब, हाँ अपील कर रहे हैं। जो लोग का अभी प्रेजेंट डिमांड है, मतलब अभी लोगों का जो चल रहा है उसी के अनुसार देखते हुए सब लोग अभी वोटिंग के तौर पे। लेकिन इधर तो नीतीश कुमार भी 1 करोड़ नौकरी का उन्होंने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। चल, नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री कैसे, वो भी बढ़िया डेवलपमेंट है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, डेवलपमेंट तो है, उसमें नो डाउट। हाँ ठीक है, नीतीश कुमार ने काम किया है, लेकिन और उनको कुछ और ग्रामीण क्षेत्र में करने का जरूरत था। बहुत बढ़िया से कर भी रहे हैं, उनको समय दिया जाए तो करेंगे भी, लेकिन अभी देखा जाए तो उनको 20 साल समय दिया गया और बदलाव हो तो और तो क्या लगता है, नीतीश कुमार ने काम किया है, नहीं किया है, क्या कहें? तो किए ही हैं, मगर बदलाव जरूरी चाहिए। बदलाव क्यों चाहिए? बदलाव चाहिए क्योंकि एक ही गद्दी पे बैठते बैठते
इसलिए बदलाव चाहिए। देखिए ये कोर आरजेडी बेल्ट है और यहाँ पर भी नीतीश कुमार को लोग लाइक करते हैं कि नहीं नीतीश कुमार ने काम किया है। ये मीन्स एक तो यूएसपी है और भी कोई। अरे आप लोग जब हम बात करके निकल गए तब आप लोग आ रहे हैं। युवा हो यार आप। क्या है ये मनेर का लड़का नहीं बोलता है क्या? ये डरता है मनेर का आदमी? मनेर का डरता नहीं ना? डरता नहीं, बिल्कुल नहीं डरता। अच्छा, ये बताओ कि क्या है कि क्या विधायक जी भारी पड़ रहे हैं कि इस बार चुनौती है? चुनौती होगा, विधायक जी के लिए नहीं हो सकता, यही जीत रहे हैं। अच्छा जीत रहे हैं। हाँ हाँ, अब सरकार किसकी आ रही है? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, टक्कर में है। नहीं नहीं इसको बोलने दीजिए, लोकतंत्र है। अभी तो टक्कर में है, एनडीए आरजेडी, कुछ भी हो सकता है। भारी है। हाँ भारी है, लड़ाई भारी है। भारी है। आप युवा हैं, लड़के हैं, किसकी सरकार आप चाहते हैं? आरजेडी की। किस लिए आरजेडी की सरकार? बदलाव चाहते हैं। बदलाव किस लिए? हाँ, जॉब के लिए। अच्छा नीतीश सरकार में जॉब नहीं है। नहीं है। बाकी चीज नीतीश सरकार में कैसा है? बाकी सब अच्छा है, डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट है तो देखिए एक चीज है, अच्छी बात है, मनेर के लोग बड़े ईमानदार हैं। भले ही आरजेडी के समर्थक है लेकिन ये कहने से इनको कोई डर या कोई शंका नहीं है कि नहीं नीतीश कुमार के शासन में काम हुआ है। ये यहाँ की जनता मानती है। खैर अपनी अपनी सोच है, इनको चाहिए कि बदलाव वाली सरकार चाहिए। आप लोग क्यों अंदर जा रही हैं? आप रुकिएगा, आप रुकिएगा। तो देखिए कि यहाँ महिलाओं की भी बात, आपको मैंने देखा वहाँ पे आप थी भाई वीरेंद्र के साथ। अब ये बताइए कि यहाँ आप लोग किस, अरे बंद मत कीजिए, हम लोग अंदर नहीं आ रहे। नहीं बोलिए ना। कौन भारी है, भाई वीरेंद्र की बाकी कैंडिडेट? नहीं देखिए, हम लोग अभी देखने में थी, देख रहे हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है। जैसा देखेंगे वैसा हम लोग करेंगे। अब लेकिन सरकार की बात करते हैं क्योंकि नीतीश कुमार आजकल सब महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। तो ये काम कर रहा है कि ये महिलाएं पैसा लेके इधर उधर जाएंगी? देखिए हम तो बोल रहे हैं महिला लोग को 10,000 रुपया दे रहे हैं। हम भी बीएड करके बैठे हुए हैं, हम लोग भी टीचर का मतलब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो इस बार तो हम लोग आंदोलन किए टीचर लोग नीतीश कुमार की तरफ से कि हम लोग को 1,20,000 वैकेंसी देना चाहिए। बाकी वो लोग तो मतलब कि बोल के मुकर गए, हम लोग को बहाली निकला नहीं। हम लोग तो तैयारी में रह रहे हैं। बाकी नीतीश कुमार को यहाँ के महिलाओं का समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए अब ऐसा तो लग ही रहा है कि मिलबे करेगा। महिला है। अच्छा ये एक चीज है कि नीतीश कुमार क्या ऐसा कर देते हैं कि महिलाओं का, किसी जाति की महिला वोट उन्हीं को जाता है? तो देखिए वैसा काम करेंगे तो उनका वोट जाएगा ही। काम किए हाँ करेंगे तो जाएगा ही ना। पाइए थोड़ा, हम अंदर नहीं आएंगे आपके घर में। आज घर में रहते हैं दाम खा जाए। क्या बताइए किसकी सरकार चाहती हैं? कौन, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कौन महिलाओं की पसंद है? जो अच्छे करेंगे उन्हीं का सरकार चाहते हैं। अच्छा नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। हाँ कर ही रहे आपको मिला कि नहीं 10,000 रुपए? हैं। मिल गया। हाँ मिला है, मिला है। तो क्या किया 10,000 रुपए से? आपने क्या किया? क्योंकि कई महिलाओं को मैंने देखा कि साड़ी खरीदा है उन्होंने, कई लोगों ने तो नहीं रोजगार मशीन खरीदे हैं। पैसा मिला है। अरे तो एक आप लोग भी तो आ जाइए, थोड़ा आप लोग का भी बात करना जरूरी है। मशीन खरीद। नीतीश कुमार में क्या अच्छा लगता है? अच्छा यही लगता है, सगरों साफ सफाई रखते हैं, सब बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई, पहले शिक्षित इतना बच्चा लोग नहीं रहता था, तो बच्चे लोग को स्कूल है, सब शिक्षा। उधर तेजस्वी यादव भी हैं, कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, हम युवा हैं तो हम, मेरी सरकार बननी चाहिए। तो तेजस्वी ज्यादा भारी है कि नीतीश कुमार? अभी तो देने से होता है सब चीज। अब बोलने के लिए तो सब नेता लोग बोलते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और टाइम आता है तो सब लोग मुकर जाते हैं। तो वैसे नहीं ना, हम लोग को चाहिए जो हम लोग को समय के अनुसार सब चीज देंगे, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। हाँ नीतीश कुमार तो अभी कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी करेंगे ना, करेंगे तो देवे करेंगे उन्हीं पर। Finally, we got to speak with the candidate himself on the campaign trail. 6 नवंबर को बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग है और अब इसको लेकर नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जो कैंडिडेट्स हैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जितनी भी ताकत है अंतिम समय में नेता लोग झोंक रहे हैं ताकि वोट जो है उन्हीं को मिले। तो हम जो चुनावी पोल यात्रा है उसमें मौजूद हैं और आज हम आ चुके हैं मनेर के विधायक हैं आरजेडी से भाई वीरेंद्र। कई दफे वो विधायक रह चुके हैं, लोकप्रिय हैं, कई बार अपनी बातों से भी सुर्खियों में आ जाते हैं। अभी हालिया दिनों में भी एक उनका ऑडियो वायरल हुआ था, बड़ी सुर्खी में थे।
तो बड़ी ढूंढने के बाद, चलने के बाद भाई वीरेंद्र हमें मिल गए हैं। देखिए कि भाई वीरेंद्र अपने जो भी समर्थक हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों के साथ बैठे हुए हैं। लोकप्रिय नेता हैं और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, बहुत पुराने नेता हैं और कई दफ़े वो मनेर जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। तो सीधे अब भाई वीरेंद्र भी हैं, उनकी जनता भी है, वोटर भी है और भाई वीरेंद्र से बात करेंगे। थोड़ा आप शिफ्ट हो जाइए, आप इधर आ जाइए आप। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, जनता यहाँ कोई लड़ाई नहीं है और जनता का आशीर्वाद हमको मिल चुका है और जनता कहती कि काहे के लिए घूम रहे हैं, हम कहा कि रिकॉर्ड बनाने के लिए घूम रहे हैं और हम जब तक आए हैं चुनाव में नहीं घूमेंगे, आपके यहाँ आएंगे तो आपको भी कैसे लगेगा कि विधायक जी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए जनता एकदम दिल से हमको समर्थन कर रही है, क्योंकि हम हर दुख सुख का हम साथी हैं, हर घर का भाई और बेटा हैं, इसलिए अपना चुनाव समझकर सारे लोग हमारी मदद कर रहा है। भाई वीरेंद्र की आखिर क्या खासियत है? 2010 से शायद आप लगातार, या उससे पहले से, हाँ साल 2000 से आप लगातार इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि जो सामने आपके जो प्रतिद्वंदी होते हैं प्रत्येक चुनाव में वो बदल जाते हैं। पिछली बार बीजेपी से कोई था, इस बार अभी एलजेपी से हैं, उसके पहले कौन था ध्यान नहीं है। आखिर भाई वीरेंद्र ऐसा क्या करते हैं कि जनता बार बार आप ही को सदन भेजना चाहती है? देखिए, एनडीए के पास कोई मुद्दा भी नहीं है, आना कोई उम्मीदवार, इसलिए यहाँ जदयू भी लड़ा है, यहाँ बीजेपी भी लड़ा है, उनसे अगर नहीं हुआ तो एलजेपी को उतारा है लोग। तो अब उसके बाद किसको उतारेगा ये हम नहीं जानते हैं। अब भाई वीरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि भाई वीरेंद्र यहाँ के विधायक हैं, लोग बड़े इन्हें स्नेह और सम्मान देते हैं, लेकिन भाई वीरेंद्र जो हैं सुर्खियों में रहते हैं। कई बार कई ऐसी बातें कह देते हैं, पूरे देश में चर्चा में आ जाते हैं, वो तो बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने देखा, मैं भी आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को घूम रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि लोगों का आपको स्नेह प्रेम मिल रहा है, तो आप लगातार कई सालों से इलाके का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि जल जमाव है, इंक्रोचमेंट है, पटना से यहाँ आने में मुझे कई घंटे लग गए, जाम की समस्या है। तो आखिर भाई वीरेंद्र इन चीज़ों को क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं? इंद्र भगवान को तो हम नहीं मना सकते हैं। जब पटना डूब सकता है तो देहात है ना, पानी पड़ेगा तो जल जमाव रहेगा ही। जब पटना जैसे शहर में गांधी मैदान जल जमाव हो जाता है तो ये तो देहात है ना, देहात में तो जल जमाव होता है, निकलते रहता है और समस्या का निदान मैं करता हूँ, फिर समस्या पैदा होती है, मैं उसको फिर निदान करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि देखिए, मैंने एक चीज देखा है कि अगर बार बार विधायक किसी भी पार्टी का हो, वो अगर चुन के सदन में जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जनता, एक बार जनता को दिखाओ कि ऐसी जो जनता है, हजारों जो लोग हैं, वोटर्स आपके हैं लाखों, वो वोट करते हैं, तभी आप बार बार जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई वीरेंद्र डरा देते हैं इस वजह से? बार बार जाते हैं। मैं हमेशा लोगों के दिल का हूँ, उनका हृदय का मैं हूँ। भाई वीरेंद्र को कोई बोल भी देता है तो फिर बाद में घर पर कहता कि नहीं, भाई वीरेंद्र से अच्छा कोई है ही नहीं। ये हर दुख सुख का साथी है, जहाँ बुलाइए तुरंत हाजिर रहते हैं। इसलिए हर कोई दिल से प्रेम करता है और हर घर का बेटा हूँ, हर घर का भाई हूँ, इसलिए हमको प्यार करता है लोग। आपसे आगे भी, क्योंकि आपके पौल यात्रा में आज हम आपके साथ दिन भर मौजूद रहेंगे, जनता से भी बात करेंगे। जब पहली बार विधायक चुन के आए, पहली बार जब इसी इलाके से आप चुनाव लड़ने आए, तो क्या कुछ आपने सोचकर आपने चुनावी अखाड़े में उतरने का आपने फैसला लिया था? उस समय क्या कुछ समस्याएं थी और अभी इतने सालों के बाद क्या लगता है कि अभी भी बाकी है, ये करना है, ये करना जरूरी है? देखिए, आप जो कुर्ता और पैंट पहने हुए हैं ये जिंदगी भर नहीं चलेगा, फटेगा फिर दूसरा खरीदाएगा। उसी तरह रोड बनता है, बिगड़ता है, टूटता है तो फिर रोड बनता है, स्कूल बनता है, फिर वो ध्वस्त होता है, फिर नया बनता है। तो निरंतर मैं काम करता जा रहा हूँ और आप मेरे इलाके में कहीं भी जाइएगा, मेन रोड कहीं भी किसी गांव में जाने के लिए आपको ऐसी चलने की जरूरत, पाँक नहीं लगेगा। सारे गांव में मैंने रोड करवा दिया है और हमारे यहाँ कई बड़े बड़े रोड भी हमने करवाया, अभी काम भी लगा हुआ है। तो दावा करते हैं नीतीश कुमार की गांव-गांव में मैंने रोड पहुंचा। सवाल है कि विधायक नहीं तो मुख्यमंत्री कोई हो सकता है क्या? जब विधायक नहीं कोई रहेगा तो मुख्यमंत्री हो सकता है क्या?
मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को इतना ही जब है तो क्यों नहीं विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं? विधानसभा का चुनाव लड़के गांव का दौरा करना चाहिए था। यही कह के कि आप लोगों ने सम्राट चौधरी को भी उतरवा दिया और उधर मंगल पांडे को। नहीं, हम लोग क्यों उतरवाएंगे? और उन लोग की क्या दशा होने जा रही है पता है ना आपको? दोनों उप मुख्यमंत्री धराशायी हो रहे हैं और मंगल पांडे की जमानत जब्त होने पर लगी हुई है। तो ये लोग जनता के धरातल पर नहीं है। ये लोग ऊपर केवल सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर देखन में छूटन लगे घाव गंभीर, ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं। वो लोग पीने वाले लोग हैं। As the poll dates in Bihar draw close, Maner remains one of the most interesting constituencies of the election. Whether this RJD veteran can withstand the challenges posed by the newcomers amid rising anti-incumbency sentiments in his constituency remains a question to be answered with the results of the election. For now, this was all we had for this episode of Roadstop Bihar. Bureau Report, NewsX.